Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333386. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17 जनवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। एज़ यूजुअल फ्रेंड्स, पहले हम कुछ रिवाइज करेंगे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स और तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए सजेशन नोट्स ज़रूर बनाइएगा, और जो बच्चे रेगुलर बेसिस पे हमें फॉलो करते हैं वो उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि अगर आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप भी आज की वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हो तो उनको नोट ज़रूर कीजिएगा, वरना आपके लिए बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखो, उत्तर प्रदेश में अभी क्या हो रही है, डेवलपमेंट की बात चल रही है कि हम आगे बढ़ेंगे और बहुत डेवलप होगी। इंडिया का टारगेट है $5 ट्रिलियन इकनॉमी का बनने का, लेकिन इसी में इस $5 ट्रिलियन इकनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा यूपी। इन्होंने बोला कि $1 ट्रिलियन की इकनॉमी तो हम ही प्रोवाइड करेंगे आपको, और ये इनका टारगेट है यूपी का। इसी के लिए अगर आपने देखा हो तो अभी फरवरी में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी। कहाँ पर होगी? लखनऊ में होगी। कहाँ पर होगी? लखनऊ में होगी। रीज़न क्या है इसका? कि ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करना कि और उनको एंकरेज करना कि आप आइए और यूपी में इन्वेस्ट कीजिए। फिर यूपी की मैं बात करूं, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि यूपी ने कुछ 76,867 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया बिफोर। अभी तो फरवरी में आपकी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट होनी है, इन्वेस्टर समिट, उससे पहले ही कुछ 76,000 करोड़ रुपए की इन्होंने इन्वेस्टमेंट ले लिया फॉर यूपी। इवन इन्होंने बोला कि जो हमारी अर्बन सिटीज़ हैं हम उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, और उन्होंने बोला कि इनको डेवलप करने की बात की गई ताकि जो ग्लोबल सिटीज़ हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड उनके साथ कंपेयर कर सके हम नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को। इवन बेसिकली नॉट नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा, बल्कि जो भी अर्बन एरियाज़ हैं यूपी में उनको। नेक्स्ट बात करते हैं ICGS कमला देवी की। कमला देवी वो आपका 5th एंड लास्ट फास्ट पेट्रोल वेसल है ऑफ FPV सीरीज़, जो कि अभी कमीशन किया गया कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट पे बात करते हैं विदिशा की। विदिशा आपकी एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ठीक है, और ये पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है इंडिया की जो कि मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर ऑन ग्राउंड वर्क हमें देखने को मिल सकता है। 5G के जो भी यूज़ केसेस हैं, जिस चीज़ में भी आप 5G को यूज़ करेंगे उसका जो ऑन ग्राउंड
हमें डिप्लॉयमेंट देखने को मिलेगा कि वहाँ के लोग उसको यूज़ कर पा रहे हैं 5G को, वो देखने को मिलेगा हमें कहाँ पर, विदिशा में, जो कि पहली डिस्ट्रिक्ट बनी है फॉर द ऑन ग्राउंड डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G यूज़ केसेस जो ऑफर किए जा रहे हैं बाय स्टार्टअप। और कहाँ पर है ये विदिशा? आपकी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आ जाता है नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 जनवरी को यूथ डे। नेक्स्ट नासा किसकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है? अगर हम बात करें तो ये यूएसए की है। इलॉन मस्क की कौन सी है? स्पेस एक्स, वो प्राइवेट हो जाती है। इसरो इंडिया की, रॉसकॉस्मोस रशिया की, सीएनएसए चाइना की, जाक्सा जापान की। ठीक है, फिर याद रखेंगे रॉसकॉस्मोस ने बोला, रशिया की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हम 2024 तक स्पेस स्टेशन से जो यूएस के साथ इनका टाइप है वो ख़त्म कर देंगे। फिर चाइना बोल रहा है सीएनएसए कि हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना लेंगे बाय द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2023। इसका नाम क्या है? टिएंगोंग स्पेस स्टेशन। अभी रिसेंटली नासा के द्वारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेलीस्कोप, वो स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था, जो कि किस में वर्क करता है? इंफ्रारेड में वर्क करता है। और इन्हीं के द्वारा भी एक पहला अर्थ लाइक एक्सोप्लैनेट को डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट पे बात करते हैं ड्यूरिंग द 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स, आरआरआर फिल्म जो कि साउथ इंडिया की फिल्म है, इनका पहला गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर देयर सॉन्ग, ओरिजिनल सॉन्ग के लिए नाटू नाटू, जिसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट पे आते हैं पृथ्वी टू इसको अभी ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा से टेस्ट फायर किया गया। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी, लो रेंज रहती है इसकी, ठीक, और ये सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल रहेगी। DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो मोबस सर्विस हम जानते हैं, पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम, फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, और यहीं पे आपका FIH का मेंस हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है 2023 का, जो कि अभी करंटली चल रहा है। कहाँ पर? राउरकेला में और भुवनेश्वर में। और राउरकेला की बात करें तो यहाँ पे बिगेस्ट हॉकी स्टेडियम रहता है, ठीक, इंडिया का। नेक्स्ट पे आते हैं वर्ल्ड हिंदी डे। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 जनवरी को हम वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के द्वारा अभी रिसेंटली एक व्हीकल लोकेशन कंट्रोल सेंटर एंड एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया ताकि वीमेन की सेफ्टी को बूस्ट दिया जा सके। आप क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकते हैं, या तो पूछ लेंगे किस स्टेट में ये लॉन्च किया गया, या पूछ लेंगे क्या लॉन्च किया गया वेस्ट बंगाल में। तो न्यू व्हीकल लोकेशन कंट्रोल सेंटर एंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अब आ जाते हैं, ये तो हो गए रिवीजन हमारी, ठीक। अब आ जाते हैं आज के करंट अफेयर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं MV गंगा विलास। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज रहेगा, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश से लेके डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। 51 डेज लॉन्ग इसकी ये जर्नी रहेगी, ठीक। आई रिपीट, डिब्रू कहाँ से लेके? वाराणसी, यूपी से लेके कहाँ तक जाएगा? डिब्रूगढ़ असम तक। ये जो डिस्टेंस है कितने दिन में कवर होगा? 51 डेज में। 27 रिवर सिस्टम्स को ये क्रॉस करके जाएगा। एक कंट्री को ट्रैवल करेगा। ये कौन सी कंट्री रहेगी? वो बांग्लादेश को ट्रैवल करेगा। और ये इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है कि किस कंट्री से ट्रैवल करता हुआ जाएगा, तो बांग्लादेश से ये ट्रैवल करता हुआ जाएगा। और ये अपनी लोकेशन पे, जो कि आपका डिब्रूगढ़ रहेगा, कब पहुंचेगा? 1 मार्च को 2023 में। एक और चीज़, ये कितने दिन लंबा रहेगा? 51 डेज लॉन्ग ये आपकी ट्रिप रहेगी ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज, जो कि है वाराणसी से डिब्रूगढ़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फोटिक फिलरेसिस बाय 2027। डायरेक्टली इसके बारे में न्यूज़ याद रखेंगे। रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री कौन सी रहेगी? मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और पर्सन डॉक्टर मनसुख मांडविया। इन्हीं के द्वारा एक नेशनल सिंपोजियम लॉन्च किया गया था, चेयर किया गया था, ऑन इंडियाज रोड मैप टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलरेसिस। और इसका टारगेट क्या रहेगा इंडिया को इसका ख़त्म करने का? बाय 2027। नेक्स्ट हम बात करते हैं लोहरी की। लोहरी क्या है? ये एक आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है? यह हार्वेस्ट फेस्टिवल बेसिकली नॉर्थ इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है।
बेसिकली पंजाबी लोगों के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और कौन कौन सी स्टेट में? पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में, जम्मू में, चंडीगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जो कि एक क्रॉप हार्वेस्टिंग एंड हैप्पीनेस, बेसिकली क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल है लोहड़ी आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमें पता है कि ई गेमिंग को, ई स्पोर्ट्स को, ऑनलाइन गेमिंग को एक लीगल मिल गया है, ठीक है, कि वो लीगल हो गया इंडिया में। तो अभी इसी से रिलेटेड याद रखना है, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे खुलने की बात की गई? शिलोंग मेघालय में। शिलोंग मेघालय में इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गेमिंग खोलने की बात की गई। कहाँ पर? शिलोंग मेघालय में। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको मार्क करके चलेंगे, पूछे जाने के पूरी चांसेस रहेंगे। जैसे अगर आपको याद हो, पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी कहाँ पर खोला गया था? ये न्यू दिल्ली में खोला गया था, ठीक है। तो ऐसे ही ये कहाँ खोला जाएगा? ई गेमिंग के लिए, ऑनलाइन गेमिंग के लिए आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया का कहाँ पर? शिलोंग मेघालय में। और इसको कब तक खोलने की बात की गई? मार्च 2023 तक इसको ओपन करने की बात की गई। ये कैटलिस्ट का काम करेगा फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स, ताकि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ के जो लोग हैं इस डिजिटल इंडिया के साथ साथ अपनी गेमिंग इंडस्ट्री को भी आगे ले जा सकें। नेक्स्ट कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं। जैसे अभी इंडिया एंड यूएई, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें, एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ग्रीन हाइड्रोजन के लिए एंड सी केबल कनेक्टिविटी के लिए। सी केबल कनेक्टिविटी से बेसिकली हम कह सकते हैं इंटरनेट कनेक्टिविटी, काफ़ी कोई और वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए ये काम आएगी आपकी सी केबल कनेक्टिविटी। और ग्रीन हाइड्रोजन हम जानती हैं ये क्या है? एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। रिन्यूएबल नहीं कह सकते हम इसको, ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, कि इससे हमारा कार्बन रिलीज नहीं होता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इससे कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं होता है। इससे क्या होता है? वाटर रिलीज होगा, जो कि आपके एटमॉस्फेयर को हार्म नहीं करेगा। जब भी कार्बन किसी भी फ्यूल से रिलीज ये किया जाएगा तो वो हार्मफुल रहता है और उससे ही पॉल्यूशन आपका क्रिएट होता है, ठीक है। ऑल्सो जो ये सब सी केबल लॉन्च की गई है ना, ये लॉन्च की गई बिटवीन इंडिया एंड यूएई अंडर द मिशन वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे बात करते हैं यूएस एंड जापान। इन दोनों के बीच में अभी एक एग्रीमेंट साइन हुआ एट नासा फॉर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। जापान और यूएस पहले काफ़ी टाइम से एक दूसरे को काफ़ी ट्रस्ट करते हैं इन द स्पेस एक्सप्लोरेशन, और इन दोनों के बीच में काफ़ी म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं, और जो ये प्रोजेक्ट्स हैं काफ़ी साथ काम करना पसंद करते हैं। इसी के लिए इनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर कॉपरेशन इन स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज फॉर पीसफुल पर्पसेस। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में ही आपका आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का भी हेडक्वार्टर रहता है। नेक्स्ट पे आते हैं बेंश्योरेंस। बेंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है? जब आपका एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी, इन दोनों के बीच में टाई अप होता है। इनके टाई अप में क्या होता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है ना, वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को कस्टमर्स को बेचती है ऑफ द बैंक, जिससे क्या होगा? बैंक के कस्टमर्स को एक सर्विस मिल जाएगी, और जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको एक आपका लोग मिल जाएंगे, कस्टमर्स मिल जाएंगे, जिससे वो अपने ब्रांच वेरियस ब्रांचेस रहेंगी, जो आपकी कुछ 1500 ब्रांचेस हैं इसकी पंजाब एंड सिंध बैंक की, जिसमें ये अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस। फिर अगर पूछा जाए आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस के चीफ एग्जीक्यूटिव जो सीईओ होते हैं वो कौन है? वो है मयंक बाथवाल जी, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा चलो एक और बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं यहीं पे पंजाब एंड सिंध बैंक के एमडी एंड सीईओ वो कौन रहेंगे? वो हैं स्वरूप कुमार साहा जी। कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये 1908 में, और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशियन वीटीबी बैंक। ये सेकंड लार्जेस्ट बैंक रहेगा रशिया का। इन्होंने लॉन्च किया डायरेक्ट पेमेंट इन रुपीज़। अच्छा आपको एक और चीज़ बताता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। अभी हम जानते हैं इंडिया रशिया से ऑयल परचेज कर रहा है, वर्जिन ऑयल परचेज कर रहा है टू बी स्पेसिफिक, ठीक। अभी क्या हुआ? इंडिया का जो इंपोर्ट था ना, जो रशियन ऑयल का ये कर रहा था, 33 टाइम्स बढ़ गया था जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है। अब इंडिया इतने ऑयल का करेगा क्या जो इंडिया इंपोर्ट कर रहा है?
क्या हुआ, यूएसए ने तो सैंक्शन लगा दिया रशिया पे कि भाई हम रशिया से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, हम उनकी ट्रांजैक्शन को बैन कर दिया, स्विफ्ट से हटा दिया। तो स्विफ्ट से हटा दिया तो अब रशिया क्या है कि अपने, पहले क्या होता था, डॉलर मीडिएटर का काम करता था, पहले अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करो और फिर डॉलर को आगे भेजो और फिर वहां पे डॉलर फिर कन्वर्ट होगा रिस्पेक्टिव करेंसी में जिस कंट्री को ने ऑयल परचेज किया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन होता था। तो अब डॉलर को हम बीच से काम ही हटा दिया। अब क्या होगा, डायरेक्ट रशिया क्या करेगा कि भाई इंडिया ने ऑयल परचेज किया तो इंडिया अपने रुपये ई रुपी भेज देगा, या ठीक है। तो अब ये जो ट्रेड हो रहा है रुपये में, रुपीज में हो रहा है। तो अब यूएसए कैसे बीच में आया कि ये यूएसए ने तो बोल दिया था कि भाई कोई इनसे ऑयल परचेज नहीं करेगा क्योंकि ये वॉर फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जो ऑयल इंडिया परचेज कर रहा है वही ऑयल इंडिया से यूएसए परचेज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि यूएसए किसका ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया का ऑयल परचेज कर रहा है। मीडिएटर कौन बन गया है, इंडिया बन गया है। ठीक है, वो सारा ऑयल नहीं बट उसका कुछ अमाउंट अब यूएसए इंडिया से परचेज कर रहा है। ठीक, हम जानते हैं कि $60 पर बैरल की भी कैप लगाई गई थी यूरोपियन नेशन ने, बेसिकली नाटो के जो भी कंट्रीज हैं उनने, कि हम रशिया से $60 पर बैरल से ऑयल खरीदेंगे, इससे ऊपर नहीं खरीदेंगे, जिसकी वजह से रशिया ने भी रिटेलिएट किया और काफ़ी ज़्यादा हमें अलग चीज़ें देखने को मिली। तो अभी रिसेंटली यही हुआ और हम जानते हैं वॉस्ट्रो अकाउंट खोले गए थे रशियन कंपनीज़ के द्वारा इनटू इंडियन बैंक्स। ये होता है वॉस्ट्रो। नॉस्ट्रो होता है जब कोई इंडियन कंपनी दूसरी कंट्री में जाके वहां पे उनके बैंक में अकाउंट खोले तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट हो गया। वॉस्ट्रो हो गया जब बाहर देश की कंपनी इंडियन बैंक्स में आके बैंक अकाउंट खोले, वो वॉस्ट्रो हो गया। तो अब वॉस्ट्रो और नॉस्ट्रो के थ्रू पेमेंट्स होंगे और हमने जाना कि 9 रशियन बैंक के द्वारा वॉस्ट्रो अकाउंट्स खोले गए थे इन इंडिया, ताकि ट्रेड इंडिया और इसमें बीच में हो सके, इंडिया और रशिया के बीच में। ऑलराइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, जो रशिया के स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइज हैं, जो छोटे बिजनेसमैन हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं, उनको डॉलर में कन्वर्जन नहीं करनी पड़ेगी, डायरेक्टली अब वो रुपीज से ट्रांसफर कर सकते हैं टू इंडियन ट्रेडर्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी ने अलाउ किया ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ जेट एयरवेज टू जलान कैलरॉक कंसोर्टियम। हम जानते हैं 2019 से, अप्रैल 2019 से जो आपकी जेट एयरवेज है ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस वो बंद है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहाँ के उनके प्लेन्स भी ऐसे ही खड़े हैं। तो उस कंपनी को बेसिकली कहने के लिए, एक रिवाइव करने के लिए और उसको यूज़ में लाने के लिए अभी एक डिसीजन हुआ कि जेकेसी जो कि है जलान कैलरॉक कंसोर्टियम, इन्होंने परचेज करने की बात की गई, ओनरशिप लेने की बात की गई ऑफ जेट एयरवेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया ने ऑनर किया 82 बेस्ट एग्रीप्रेन्योर्स को विद अवार्ड्स ऑन नेशनल यूथ डे 2023 के दौरान। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं और इसी दिन अगर एग्रीप्रेन्योर्स की बात करूं तो एग्रीकल्चर, जैसे एडटेक क्या होता है, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी, फिनटेक क्या होता है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, ऐसे ही आपका एग्रीप्रेन्योर्स क्या हो गया, एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योर्स। तो एग्रीकल्चर एंड एंटरप्रेन्योर्स को अवार्ड 82 ऐसे एग्रीप्रेन्योर्स जो एग्रीकल्चर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों से रिलेट करते हैं उनको सम्मानित किया गया, और वो थे 82। रीज़न क्या है कि ताकि जो आपकी एग्रीकल्चर है उसको ईजी बनाया जा सके, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाया जा सके इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, लोगों को ट्रेन किया जा सके कि कैसे हम टेक्नोलॉजी की मदद से, कैसे फॉर एग्जांपल ड्रोन की मदद से ही हम कैसे एग्रीकल्चर को और इजी बना सकते हैं, कैसे उसको लेबर लेस बना सकते हैं, मींस लेबर का जो इंटेंसिव लेबर होता है उसको रिड्यूस किया जा सकता है, टाइम एफिशिएंट कैसे बन सकते हैं, कैसे कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं कि हमारी जो एग्रीकल्चर है हम उसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट करें और लाभ हमारा ज़्यादा हो। नेक्स्ट पे आते हैं, बॉनी गैब्रियल, ये यूएसए की हैं और इनको अभी मिस यूनिवर्स के टाइटल से सम्मानित किया गया 2022 के। 11 साल बाद यूएसए की कोई महिला मिस यूनिवर्स बनी है और 2021 की जो मिस यूनिवर्स थी इंडिया की, हरनाज सांधू, उन्होंने ये टाइटल इनको दिया, उन्होंने इनको क्राउन किया एज द मिस यूनिवर्स ऑफ 2022, बॉनी गैब्रियल। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसीसी। एसीसी के जो हेड हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। एसीसी क्या है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ये हेड की जाती है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और इन्होंने अभी अप्रूवल दिया है संजीव चड्ढा को टू बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड एमडी ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। इनके टर्म को एक्सटेंड कर दिया गया है, पहले इनकी रिटायरमेंट हो रही थी, ये 60 साल के पूरे हो जाएंगे 30 जून 2023 को।
ठीक है। और अब ये इनकी जो टेन्योर था वो ख़त्म हो रहा था 19 जनवरी 2023 को, तो इनको एक्सटेंशन मिल गई है 19 जनवरी से 30 जून तक की टू कंप्लीट हिज टाइम पीरियड, और फिर ये 60 साल के हो जाएंगे और इनकी रिटायरमेंट हो जाएगी फिर। ठीक, तो संजीव चड्ढा को एक्सटेंशन मिल गई है 30 जून तक। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात कर रहे हैं वर्ल्ड का पहला एग्री फोकस सैटेलाइट टू जनरेट 108 मिलियन रेवेन्यू फॉर साउथ अफ्रीका। अब जैसे आप सोचेंगे कि ये कैसे जनरेट करेगी सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या करेगी, इमेज को कैप्चर करेगी, ये बताएगी कि कब आपका मौसम बदलेगा, कब बारिश होगी, कब सूखा पड़ेगा, कब आपके लिए इजी होगा क्रॉप को सो करना। फिर ये बताएगी कि कहाँ पर आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल आपको मिल सकता है। आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो हार्वेस्टिंग है उसको ईजिली बनाएगा, मैपिंग करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा, ये सीजनल प्लानिंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जिसकी मदद से क्या होगा, जो ये इसको रेवेन्यू की तरह यूज़ कर सकते हैं, इसको सर्विस की तरह आगे सेल कर सकते हैं, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वर्ल्ड का पहला एग्री फोकस सैटेलाइट है ये, जो जनरेट करेगी ऑलमोस्ट 108 मिलियन रेवेन्यू फॉर साउथ अफ्रीका। इसको स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया था। स्पेस एक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था इनटू स्पेस। और यहीं पे बात करूँ, स्पेस एक्स के द्वारा वन वेब की भी 40 सैटेलाइट पहले और अब फिर 40 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया इनटू स्पेस। और ये वन वेब कहाँ की कंपनी है, यूके की। खुद क्यों नहीं लॉन्च करते यूके, क्योंकि अभी हमने देखा इन्होंने लॉन्च करने की कोशिश की थी एक सैटेलाइट को, बट वो एक फेलियर मिशन रहा था। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्यूटरी की। रिसेंटली रियोन साइंटिस्ट डॉक्टर एडी दामोदरन, इनका निधन हो गया। ये रियोन साइंटिस्ट थे और फॉर्मर डायरेक्टर थे ऑफ CSIR NIIST, जिनका भी रिसेंटली निधन हुआ तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, डॉक्टर एडी दामोदरन, इन्होंने वर्क किया ब्रीफली एट द न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स इन हैदराबाद तेलंगाना एंड सर्व्ड एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेटल्स एंड द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन तिरुवनंतपुरम Kerala. He started working at the Bhabha Atomic Research Center and later he took over as the director बने ये CSIR NIIST के 1985 में, where he held the position for 12 years. He was also the chairman of Kerala State Electronics Development Corporation and an expert in advanced materials, nutraceuticals and food nutrition and intellectual property rights, जो कि IP rights होते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट भी हम बात करेंगे ऑब्यूटरी की। MP संतोष चौधरी, ये जलंधर से कांग्रेस के MP हैं, जिनका भी रिसेंटली निधन हो गया ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा। हार्ट अटैक से इनका निधन हो गया। ठीक, भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, ये कांग्रेस के द्वारा स्टार्ट की गई है। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था भारत जोड़ो यात्रा को। अगर हम इसकी बात करें, ये 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी 2022 में, और ये 150 दिन लंबी आपकी जर्नी रहेगी। तिरुवनंतपुरम से स्टार्ट हुई थी, कन्याकुमारी से ये स्टार्ट हुई थी और जम्मू एंड कश्मीर में जाके ये ख़त्म होगी। ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस वॉक करने की बात की गई, ट्रैवल करने की बात की जाएगी इन अबाउट 150 डेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक बुक की, जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई थी बाय द ऑथर जो कि है तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर MA सुब्रमण्यम जी। ठीक, इनके द्वारा इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। बुक का नाम है कम लेट्स रन। तमिल में ये तमिल वर्जन है बुक का। तमिल में इसका नाम था ओडलम वांगा, और इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया MA सुब्रमण्यम के द्वारा। ठीक है, और इस बुक को रिलीज किया गया बाय फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम के श्रीनाथ के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7वें आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे की, जो कि 14 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखेंगे वो क्या है, ये किन की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है, ये फील्ड मार्शल करियप्पा KM करियप्पा की मेमोरी में ऑब्जर्व किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस डे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे 75th इंडियन आर्मी डे, ये कब ऑब्जर्व किया जाता है और ये क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि जो अचीवमेंट्स थी ऑफ फर्स्ट इंडियन चीफ कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल KM करियप्पा, उनकी मेमोरी में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और याद रखेंगे ऑन दिस डे ऑन 15th जनवरी ओनली इन्होंने कमांड ली थी फ्रॉम IA फ्रॉम जनरल सर फ्रांसिस रॉबर्ट रॉय बुचर, जो कि लास्ट ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे 1949 में। इस दिन
15 जनवरी को इन्होंने उनसे कमांड ले ली थी। तो इसीलिए याद रखना 75वां ये आपका इंडियन आर्मी डे रहेगा, 15 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है, 75th एडिशन था। और कमांडर इन चीफ KM करियप्पा की मेमोरी में उनकी अचीवमेंट्स के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। हर साल ये न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व होता था, लेकिन इस बार न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व ना करा के इसको बेंगलोर कर्नाटका में इस परेड को ऑब्जर्व कराया गया। ठीक, तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। MV गंगा विलास मोदी के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज है, जो कि वाराणसी यूपी से लेके डिब्रूगढ़ असम तक जाएगा। ठीक, और ये बांग्लादेश से होता जाएगा, 27 रिवर्स को ये कवर करेगा। एंड ऑलमोस्ट याद रखेंगे इसी के साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 51 डेज लॉन्ग रहेगा आपकी इसकी जर्नी। और ये 27 रिवर से होता आपका वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज रहेगा, डिब्रूगढ़ से वाराणसी यूपी से डिब्रूगढ़ तक। और कौन सी कंट्री में जाएगा ये, बांग्लादेश में। फिर इंडिया इज कमिटेड टू एलिमिनेटिंग लिम्फेटिक फिलरेसिस बाय 2027। लोहरी आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो नॉर्थ इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया की बात करें, इन्होंने पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया फॉर ऑनलाइन गेमिंग, जो कि सेटअप किया गया था शिलोंग मेघालय में बाय मार्च 2023। इंडिया एंड UAE ने एक एग्रीमेंट साइन किया ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर एज वेल एज सी केबल कनेक्टिविटी के ऊपर। US और जापान के बीच में भी एक पैक्ट साइन किया गया नासा के साथ, ताकि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की जा सके। और ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करती हैं, और जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इनके एम्स रहते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस ने भी एक बेंश्योरेंस पैक्ट साइन किया पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ। बेंश्योरेंस मैं बता चुका हूँ क्या होता है, जब आपका एक बैंक किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाइप करता है, जिससे क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएगी टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे रशिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक की, VTB बैंक की। इन्होंने लॉन्च की डायरेक्ट पेमेंट इन रुपीस, और 9 रशियन बैंक्स के द्वारा वॉस्टो अकाउंट्स खोले गए हैं इंडिया में। NCLT ने अप्रूव किया ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ जेट एयरवेज टू जलान कैलरॉक कंसोर्टियम। इंडिया ने ऑनर किया 82 बेस्ट एग्रीप्रेन्योर्स को विद अवार्ड्स ऑन नेशनल यूथ डे। बॉनी गैब्रियल ये रशिया की हैं और ये USA की हैं, और इनको क्राउन किया गया एज मिस यूनिवर्स 2022 बाय 2021 की मिस यूनिवर्स हरनाज सांतु, जो कि इंडिया की हैं। ACC ने एक्सटेंड कर दिया टेन्योर ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव चड्ढा जी का। फिर वर्ल्ड का पहला एग्री फोकस सैटेलाइट जनरेट करेगा ऑलमोस्ट $108 मिलियन रिवेन्यूज फॉर साउथ अफ्रीका। फिर हम बात करते हैं रियोन साइंटिस्ट डॉक्टर AD दामोदरन, इनका निधन हो गया। कांग्रेस जलंधर MP संतोष चौधरी, ये भी इनका भी रिसेंटली निधन हो गया ड्यूरिंग भारत जोड़ो यात्रा। कम लेट्स रन ये इंग्लिश वर्जन है ऑफ द तमिल बुक, जो कि रिसेंटली रिलीज की गई। इस बुक को ऑथर किया गया बाय तमिलनाडु के हेल्थ मिनिस्टर। फिर 7th आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे की बात करें, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 14 जनवरी 2023 को। और 75वें इंडियन आर्मी डे की बात करूं तो मैं 15 जनवरी 2023 को ये ऑब्जर्व किया जाता है कमांडर इन चीफ KM करियप्पा की मेमोरी में उनकी अचीवमेंट्स के लिए। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला क्वेश्चन रहेगा आपका, किस इंस्टीट्यूशन ने रिसेंटली रिलीज किया सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स। सेकेंड, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023 को। थर्ड, किन्होंने ऑथर किया रेवोल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम इस बुक को। चौथा, विच इज़ द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू हैव अ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट विद जापान। फिफ्थ, किस स्टेट ने लॉन्च किया शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम एंड एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम को। ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, और अगर सेशन पसंद आया और अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन फ्यूचर में लाते रहें तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करते हैं, वीकली बेसिस पे करंट अपलोड करते हैं, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर अपलोड करते हैं, जिसके साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे इंटरनेशनल डेज, इम्पॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस,
जैसे आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स अपलोड किया जाता है। इसी के साथ साथ आप क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन कैरियर्स क्लाउड पे जाके। वहाँ पे आप कोर्सेज पे परचेज करके आप इन सारी क्विज़ को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी और वीडियोस देखनी है करंट अफेयर्स बाय विकास राणा, आप यूट्यूब पे लिखिए और हमारे चैनल अफेयर्स क्लाउड पे आपको सारे करंट अफेयर्स हमारे मिल जाएंगी, सारी वीडियो जो मेरे द्वारा अपलोड की जाती हैं, जिससे आपकी क्या है प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। आपको डेली करंट अफेयर्स रिवाइज करने का मौका मिलता है और नए नए करंट अफेयर्स तो हम पढ़ते ही हैं, जैसे रिपोर्ट्स आ गई, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। डेली जब आप रिवाइज करते रहेंगे ना, हमारा 40 to 45 मिनट्स का 30 to 45 मिनट्स का ये सेशन रहता है, ठीक है। अगर आधे पौने घंटे आप इस सेशन को देख लेते हैं एक दिन में, तो आप ये समझिए आपका पुराना भी रिवाइज होता रहता है और जो नया करंट अफेयर में आ रहा है, जो नई चीज़ें चल रही हैं, वो भी आपकी रिवाइज होती रहती हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो जाती है। इसलिए बस मैं कह रहा हूँ लाइक कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताओ आपको सेशन कैसा लगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.